My dear students, welcome to Mathological. In this session, we will be discussing questions of quantitative aptitude relevant for the SNAP examination. We've already discussed some questions, mixed set of questions for SNAP as well as UNMAT. So यहाँ पे we'll be focusing more on those topics which are not in the syllabus of UNMAT. For example, time, speed, distance, and geometry, and algebra as well. Okay, start करते हैं. So the first question: A and B start moving towards each other from places x and y respectively at the same time on the same day. The speed of A is 20% more than that of B. After meeting on the way, A and B take p hours and 7 and 1/5 hours respectively to reach y and x respectively. So y का वैल्यू क्या हो, p का वैल्यू क्या होगा? Pause the video and try to solve it yourself. So there are two locations x and y. A is moving from x towards y and B is moving from y towards x. And after meeting, they will continue their journey towards their destination. Okay, let us say this is the meeting point M. So the speed of A is 20% more than that of B. Speed of A upon speed of B क्या होगा? 20% is 1/5. तो 1/5 ज़्यादा है B से, यानी कि A और B का स्पीड का रेशो आ जाएगा 6/5. 6/5. After meeting on the way, A and B take p hours and 7 and 1/5 hours respectively. So after meeting, they are taking, A is taking 7 hours more, p hours more, and B is taking 7 and 1/5 hours. So ratio होता है, if A is person number 1, B is person number 2, and meeting time is t, because they have taken the same time पे start किया है, ठीक है. So after meeting, the time taken by A will be t1, which is equal to p. Time taken by B will be t2, which is 7 and 1/5. So speed of A upon speed of B, this is equal to square root of t2 upon t1. Square root of t2 upon t1. So 6/5 will be equal to the square root of t2, or t2 has 7 and 1/5, which is 36 upon 5, divided by t1, which is equal to p. So 6/5 becomes equal to, ठीक है, 6/5 becomes equal to स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन 5p, या फिर स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स में, तो 6/5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा इक्वल टू 36 अपॉन 5p, एंड हेंस 5p विल बी इक्वल टू 25 और p आ जाएगा इक्वल टू 5. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है. स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t2 बाई t1. और जस्ट इनकेस अगर टाइम t पूछा होता क्वेश्चन में कि टाइम t की वैल्यू क्या होगा, तो t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू t2. So now that we know that p is equal to 5, यानी कि t1 की वैल्यू 5 है, तो t will be equal to square root of 5 into 36 by 5. So that will be equal to 6 hours. So they first met after 6 hours. ठीक है. Okay. Next question. A person divided a certain sum between his 3 sons in the ratio 3:4:5. तो अगर son number 1, son number 2, son number 3 के बीच का रेशियो होगा 3:4:5 का, अगर डिवाइड किया होता सर्टेन सम को इन दिस रेशियो. बट हुआ ये कि हैड ही डिवाइडेड, एक्चुअली डिवाइड किया 3, 4, 5 में, बट हैड ही डिवाइडेड द सम इन द रेशियो 1/3:1/4:1/5, द सन हु गॉट द लीस्ट शेयर, किसको मिला है लीस्ट शेयर? S1 को. वुड हैव गॉट इन ₹1188 मोर, इतना एक्स्ट्रा मिल गया होता. पहले तो रेशियो फाइंड आउट करते हैं, 1/3:1/4:1/5 का रेशियो क्या होगा? दैट रेशियो विल बी 1/3:1/4:1/5. डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 3, 4, 5 आ रहा है. एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60/3 is 20, 60/4 is 15, एंड 60/5 is 12. तो न्यू रेशियो विल बी 20, 15, 12. ओके. बट इनिशियल रेशियोज का सम क्या था? 3 + 4 + 5, दिस वाज इक्वल टू 12 यूनिट्स. और अब रेशियोज का सम है 20 + 15 + 12, दिस इज 47 यूनिट्स. बट ओनली कंपेरेबल्स कैन बी कंपेयर्ड, और अभी 12 और 47 कंपेरेबल नहीं है, दे आर नॉट कंपेरेबल, दे आर अनइक्वल. तो पहले इनको इक्वल करोगे, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो 47 से, और 47 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से. नाउ दीज वैल्यूज आर इक्वल. अब ये वैल्यूज इक्वल है, और क्वेश्चन ये कह रहा है दैट द सन हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर गॉट ₹118488 मोर. ठीक है. सो अगर 47 मल्टीप्लाई किया, तो सारे के सारे रेशियोज को भी 47 से मल्टीप्लाई करोगे, और सेम फॉर द सेकेंड वैल्यूज. और अब हमें कंपेयर किसको करना है? वी हैव टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज. सो दिस अमाउंट is 1188 more than the previous amount. तो ये अमाउंट कितना है? 240, 20 into 12, 240 यूनिट्स, माइनस 17 into 3, 47 into 3, 47 into 3, that is 141 units.
ठीक है, अगर यूनिट्स में इशू आ रहा हो तो एक्स मान सकते हो कि 12x और 240x 141x डिफरेंस आ रहा है हमारा 99 यूनिट्स का, एंड क्वेश्चन इज सेइंग दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 1188 रुपीज। सो 99 यूनिट्स इक्वल 1188 रुपीज। 100 1200 के आसपास वैल्यू आ रहा है, एक्जैक्टली 12 का मल्टीपल है, 12 इंटू 99 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 12 रुपीज, 1 यूनिट इज 12 रुपीज। और क्वेश्चन पूछा टोटल सम क्या है, टोटल सम है 12 इंटू 47, टोटल सम हो जाएगा 12 इंटू 47 यूनिट्स में है, मल्टीप्लाई दिस बाई 12 एज वेल, तो दिस विल बी 144 इंटू 47। आंसर आ जाएगा 4 इंटू 7, यूनिट शुड बी 8, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन डी तो आंसर नहीं है। यूनिट 8 अपना बी और सी में आ रहा है, लेकिन एडिशनली क्योंकि 144 का मल्टीपल है, 144 का है 12 का स्क्वायर है, यानी कि 3 के स्क्वायर का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 9 है, मल्टीपल ऑफ 9 है, तो 9 का मल्टीपल 7 प्लस 8 सम ऑफ डिजिट्स 15 आ रहा है, ऑप्शन सी आंसर नहीं, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली कर ही सकते हो, 144 इंटू 47, 47 इंटू 4 क्या होगा, 160 प्लस 28 188, 8 आ गया, 18 कैरी हो गया, अगेन 188 प्लस 18 206, 6 आ गया, 20 कैरी, और 47 प्लस 20 दैट इज 67, तो 6768 आंसर है, बट उससे कम टाइम लगेगा अगर यूनिट 8 से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो। नेक्स्ट वन, ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 days, B कैन डू 33.33% ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। तो अगर A 20% वर्क कर रहा है 4 days में, 20% यानी कि 1/5 वर्क कर रहा है 4 days में, तो अगर 1/5 वर्क कर रहा है 4 days में, तो कंप्लीट वर्क करेगा 4 इंटू 5 20 days में। B 1/3 वर्क 33.33% वर्क कर रहा है 10 days में, 1/3 वर्क कर रहा है 10 days में, तो कंप्लीट वर्क करेगा 3 इंटू 10 30 days में। A 20 days में वर्क कंप्लीट कर रहा है, B 30 days में कंप्लीट कर रहा है, एलसीएम ले लिया 20 और 30 का आ गया 60, और अगर एलसीएम है 60, सो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 3, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 2 एलसीएम मेथड से। देन क्वेश्चन इज सेइंग दे वर्क टुगेदर फॉर 9 days, यानी कि ए एंड बी वर्कड टुगेदर फॉर 9 days, तो फॉर 9 days ए एंड बी कितना वर्क कंप्लीट करेंगे, एफिशिएंसी है 3 प्लस 2 5, तो 5 इंटू 9 45 यूनिट्स वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया। देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई सी इन 6 days, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 days, तो सी ने 6 days में वर्क किया कितना, 45 यूनिट्स वर्क हो चुका है, 60 यूनिट्स टोटल वर्क है, तो बचा हुआ वर्क कितना है 15 यूनिट्स, 6 days में सी कंप्लीटेड 15 यूनिट्स वर्क, सो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 15/6 विच इज 2.5 यूनिट्स ऑफ वर्क पर डे। क्वेश्चन इज आस्किंग बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन हाउ मच टाइम, सो टाइम टेकन बाई बी प्लस सी टुगेदर विल बी इक्वल टू 75% वर्क करना है, 3/4 वर्क करना है, 3/4 वर्क करना है 60 का, एफिशिएंसी है बी का 2, सी का है 2.5, तो 4.5, तो 45 अपॉन 4.5 ऑब्वियसली 10 days विल बी द आंसर, 45/4.5 ऑप्शन बी 10 days विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, क्यूब है, सारी साइड्स इक्वल है, दिस क्यूब इज इमर्स्ड इन अ वाटर फिल्ड वेसल विद द डायमेंशंस ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर बेस 12 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर, बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द वेसल, तो कितना वाटर राइज करेगा, एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम राइज करेगा जितना वॉल्यूम हमने डिप किया है क्यूब का, इजंट इट सो। तो हमें चेकआउट करना है क्यूब का वॉल्यूम कितना है, अकॉर्डिंगली हमें रेक्टेंगुलर बेस का एरिया पता है, बेस का एरिया पता है, तो हाइट और एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम आ जाएगा राइज का। ठीक है, सो लेट अस से इनिशियल वाटर का लेवल क्या है, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइज से फर्क पड़ेगा, तो इनिशियली वाटर का लेवल लेट अस से वाज दिस। ठीक है, सो इनिशियल हाइट वाज लेट अस से कैपिटल एच था, और बेस का एरिया हमें पता ही है। ठीक है, और एडिशनली लेट अस से आफ्टर इमर्सिंग द क्यूब now the height has risen by h1 small h, let us say, okay, so the new volume, this rise, this is volume of this rise, this is equal to volume of cube, और ये वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट विच विल बी 12 इंटू 20 इंटू h, एंड दिस इज इक्वल टू 8 का होल क्यूब, सो h विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 इंटू 20, so 32/15, so this will be 2 and 2/15 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, ठीक है ना हमने,
कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है। 2 and 2 by 15 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू नन ऑफ दीज। 512, दिस इज 240, यस सही क्या है। तो 2 and 2 by 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two positive numbers differ by 1 to 80. When the larger number is divided by the smaller number, the quotient is 7 and the remainder is 50. तो larger number का वैल्यू क्या होगा? Let us say numbers हैं a and b, मान लेते हैं a is the larger number, b is the smaller number, तो a minus b आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1 to 80. Additionally, larger number is divided by smaller number, quotient आ रहा है 7 और remainder आ रहा है 50, तो larger number will be equal to smaller number which is b multiplied by the quotient which is 7 plus 50. Dividend is equal to divisor इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो डिविडेंड हमारा लार्जर नंबर है, डिवाइजर हमारा स्मॉलर नंबर है, तो a इज इक्वल टू बी इंटू 7 प्लस 50, a इज इक्वल टू 7b प्लस 50, तो a इज इक्वल टू 7b प्लस 50 को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो 7b प्लस 50 माइनस b इज इक्वल टू 1280, यहां से हमारा 6b विल बी इक्वल टू 1280 माइनस 50 1230, तो b आ जाएगा इक्वल टू 205, और हमें क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछा है, तो a विल बी इक्वल टू 205 इंटू 7 इंटू 50, so this will be 1435 plus 50 1485, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यहां पे इक्वेशन बहुत सिंपल था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जस्ट इन केस इक्वेशन और भी ज्यादा टिपिकल होता तो क्वेश्चन में एक हिंट हमें और गिवन है, लार्जर नंबर हमें चाहिए, लार्जर नंबर है क्या, डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, कोशेंट इज 7 एंड रिमाइंडर इज 50, तो लार्जर नंबर a इज इक्वल टू 7b प्लस 50, ठीक है। बट ऐसे समझो कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम द लार्जर नंबर, so a minus 50, so this is the multiple of 7. ओके, अगर क्वेश्चन और ज्यादा टिपिकल होता, काफी ज्यादा कैलकुलेशन होता, तो a minus 50 is the multiple of 7, 7 का मल्टीपल है, और अगर 7 का मल्टीपल है तो हम ऑप्शंस में चेकआउट कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में 50 सब्ट्रैक्ट करने पे 7 का मल्टीपल मिल रहा है, तो 1458 minus 50 is 1408, this is not a multiple of 7, 1485 minus 50, तो 1435, yes this is the multiple of 7, ऑप्शन सी 1585 minus 50, तो 1535, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, और 1558 में भी इफ यू सब्ट्रैक्ट 50, तो दिस बिकम्स 1508, क्या मल्टीपल ऑफ 7 है, 14 10, नो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, सो ओनली वन ऑप्शन इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी द आंसर। क्या क्लियर? ऑप्शंस दिए हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। As observed from the top of a lighthouse 120√3 meters above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. The distance traveled by the ship during the period of the observation क्या होगा? 30 60 90 वाले ट्रायंगल को एक बार याद कर लो, अगर भूल गए हो तो याद कर लो, एटलीस्ट साइड एंड डिस्टेंस में तो बार बार यही दो ट्रायंगल्स हमारे काम आएंगे, 30 60 90 वाला और एक 90 45 45, ठीक है। सो इफ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 90, तो 30 के सामने वाला साइड विल बी स्मॉलेस्ट, एंड इफ दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड हो जाएगा √3 यूनिट्स और 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा 2 यूनिट्स, तो साइज का रेशियो हो जाएगा 1:√3:2, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन यही सेम रेशियो हमें दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है 45 45 90, टू एंगल्स ऑफ 45 एंड द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री का एंगल, तो 45 के सामने वाला साइड होगा 1 यूनिट, दिस विल आल्सो बी 1 यूनिट एंड दिस विल बी √2, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, 1:1:√2, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन, तो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, तो देयर इज अ लाइट हाउस and height of the lighthouse is 120√3. Okay, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 60 degree. Angle of depression changes from 30 degree to 60 degree, so this will be angle of depression initially, which is 30 degrees, but after it changes to 60 degrees. So initially this is 30, so if this is 30, this angle will also be 30. Similarly, finally this is 60, angle of depression, so now this becomes 60, or this height is 120√3. Distance traveled by the ship during the period of observation क्या है? This is the distance traveled. Initially this is the point, finally this is the point, so this is the distance traveled. This distance we need to find out, ठीक है। इनिशियली 30 डिग्री का एंगल है, सो इफ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल विल बी 60, दिस एंगल इज 90, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज 60, सो 30 के सामने वाला साइड, दिस इज 120√3,
तो 60 के सामने वाला साइड क्या होगा, 30 के सामने वाला साइड, इफ दैट इज इक्वल टू 1, तो 60 के सामने वाला साइड होता है √3, तो 120 √3 है, सो दिस टोटल डिस्टेंस विल बी 120 √3 into √3, so this will be 360 meters, 360 meters होगा. ओके, क्लियर है. अब सेकंड केस में व्हेन दिस एंगल इज 60, तो 60 के सामने वाला साइड क्या है 120 √3. अब ये एंगल हो गया हमारा 30 के सामने वाला साइड क्या होगा 120 √3 डिवाइडेड बाय √3, सो दिस विल बी 120 √3 डिवाइड बाय √3 विच इज 120 मीटर्स. सो टोटल है 360, बचा है 120, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 240, सो दिस विल बी 240 मीटर्स. ऑप्शन ए इज द आंसर. क्या है, क्लियर? ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 240 मीटर्स. अब क्वेश्चन में डिस्टेंस भेजा, कभी टाइम भी पूछ लेता है, स्पीड भी पूछ लेता है, तो अकॉर्डिंगली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि अगर 5 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अकॉर्डिंगली स्पीड आ जाएगी, 5 सेकंड्स में किया तो स्पीड आ जाएगी. नेक्स्ट वन, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर्स रनिंग एट 80 km/h क्रॉसेज another train moving in the opposite direction 37 km/h in 18 seconds. What is the length of the other train? So when two trains cross each other, the distance traveled during the crossing is length of first train plus length of second train. और एक ट्रेन का लेंथ हमें गिवन है, सेकंड ट्रेन का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है. बोथ आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड हमारी एडअप हो जाएंगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा s1 + s2. तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी l1 + l2. टाइम हमें गिवन है, ठीक है. सो L1 + L2 which is 287 plus L2, this is equal to स्पीड का सम which is 80 km/h plus 37, तो 80 + 37, बट ये स्पीड आ रहा है हमारा km/h में, और हमें टाइम दिया है सेकंड्स में, डिस्टेंस निकालना है मीटर्स में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो स्पीड को, तो इनटू कर दोगे 5/18. सो नाउ द स्पीड इज इन मीटर पर सेकंड. मल्टीप्लाई दिस बाय सेकंड्स टाइम 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया. दिस इज 117 × 5, तो 117 × 5 इज 585. तो L2 आ जाएगा हमारा 585 - 287 विच विल बी 298 मीटर्स. सो लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन विल बी 298 मीटर्स. ऑप्शन बी, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x² - 5x + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 10 + 1 upon x² ^ 5. x² ^ 10 + 1 upon x² ^ 5. So basically this value is x² ^ 10 by x² ^ 5, which is x² ^ 5 plus 1 upon x² ^ 5. So basically we have to find out x + 1 by x का वैल्यू, और वहां से फिर प्रोसीड कर सकते हैं. So x² - 5x + 1 is equal to 0. This is basically x² + 1 is equal to 5x, and hence x + 1 by x is equal to 5. स्क्वायर कर दो, तो x² + 1 by x² क्या आ जाएगा, a + 2, दिस इज इक्वल 25, तो x² + 1 by x² हमारा इक्वल टू आ जाएगा 23. सिमिलरली क्यूब करोगे तो x³ + 1 by x³ आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू p, so this is p³ - 3p, so this will be 125 - 15 and hence 110. okay, हमें निकालना है x² ^ 5 plus 1 upon x² ^ 5. मल्टीप्लाई दीज टू, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट, दिस इज सेकंड रिजल्ट, तो 1 × 2 कर दोगे. So x² + 1 upon x² into x³ plus 1 upon x³, this is equal to x² ^ 5 plus 1 upon x² ^ 5 plus x + 1 by x. पुट कर दो वैल्यूज. सो दिस इज 23 into 110, so this is equal to x² ^ 5 plus 1 upon x² ^ 5 plus x + 1 by x है 5 plus 5. तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, 23 into 110 क्या आ जाएगा, दिस इज 230, 2530, 2530 minus 5, so this is 2525. Answer will be 2525. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circle with center O, a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle, and PT is a tangent to the circle at the point C on it. If angle BPT is 36 degrees, then what is the measure of angle BCP? Draw the diagram.
So first of all, AB is the diameter and O is the center, and diameter AB is produced to P, और P से फिर हमने एक tangent ड्रॉ किया है PC. So this is P, this is C. Okay, PT is the tangent to the circle at point C. Angle BPT is 36 degrees. BPT is 36 degrees. This angle is 36 degrees. Then what is the measure of angle BCP? Angle BCP. Okay. Connect OC. क्यों कनेक्ट कर रहे हैं OC को? Because we know OB. OB क्या है? OB is the radius of the circle. OC क्या है? OC is also the radius of the circle. So these two are equal. ठीक है? These two are equal. और since PC is the tangent, PC tangent है, OC radius है, तो tangent और radius perpendicular होंगे एक दूसरे पे. तो this angle will be 90 degrees. And if this angle is 90, this angle is 36, तो triangle OCP में angle COP क्या होगा? This will be 90 minus 36, because एक angle अकेला 90 है, बाकी दो का सम 90 होगा. So this will be 54 degrees. So angle COP is 54 degrees. COP और COB, ठीक है, COB भी हो जाएगा. एंगल OCP में आ गया, एंगल COP 54 डिग्रीज. अब ट्रायंगल OBC में फिक्स करो, तो यहां पे एंगल COP एक ही बात है, 54 डिग्रीज है. और OC एंड OB आर इक्वल. OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस. ये दोनों रेडियस है. इफ दीज टू आर रेडियस, तो ये दोनों एंगल से इक्वल होंगे. क्या वैल्यू हो जाएगा? 54. तो एक एंगल हो गया, बचा है हमारा 126. तो दिस एंगल विल बी 63 डिग्रीज. दिस विल ऑल्सो बी 63 डिग्रीज. So this angle will be 90 minus 63, which will be 27 degrees. Option C will be the answer. Option C आंसर हो जाएगा. क्या ये क्लियर है? ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. अच्छा, एक चीज ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे, यही सेम चीज, दो उसकी जरूरत नहीं है, बट जस्ट इन केस तुम AC को कनेक्ट कर देते. ओके, दिस एंगल वाज 54. ठीक है. सो ये फ्रॉम कॉर्ड BC, एंगल मेड ऑन सेंटर, एंगल COB, दिस इज 54 डिग्रीज. तो एंगल मेड ऑन द सर्कमफरेंस, एंगल CAB क्या होगा? हाफ ऑफ दैट एंगल 27 डिग्रीज होगा. और एंगल CAB, this will be equal to angle BCP, alternate segment theorem. उसको भी रिवाइज कर ही लेते हैं. alternate segment theorem से these two angles will be equal, because angle BCP is angle made by the chord and tangent, isn't it so? और chord से alternate segment में बनने वाला जो एंगल है, that is angle BAC. so both will be equal. okay, so that is why angle BCP will be 27 degrees. क्या ये क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If A plus B plus C is equal to 6 and AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC is equal to 342, then what is the value of AB plus BC plus CA? AB plus BC plus CA का वैल्यू क्या होगा? A plus B plus C 6 गिवन है. A क्यूब plus B क्यूब plus C क्यूब minus 3ABC. So this is equal to A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA. Or we can write this as A plus B plus C, क्योंकि हमें A square plus B square plus C square का वैल्यू तो पता नहीं है डायरेक्टली. So this can be written as A plus B plus C का होल स्क्वायर minus 3 times AB plus BC plus C. ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम और मान लेते हैं AB plus BC plus C, this is equal to X. So A Q plus B Q plus C minus 3ABC, this is equal to 342. 342 is equal to 6 into 6 square, which is 36 minus 3x. So 342 को 6 से कैंसिल आउट करो, कितना बचेगा? 6 5 जा 30, 57. So 3x is equal to 57. 3x is equal to 36 minus 57, which is minus 21. So x is equal to minus 7. So आंसर आ गया हमारा इक्वल टू minus 7. AB plus BC plus CA, this is equal to minus 7. Okay. ठीक है, क्या ये क्लियर है?
एक और अप्रोच से काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, तीन अननोन है, देयर आर टू इक्वेशंस एंड थ्री अननोन्स आर देयर, सो वी कैन एज्यूम वन अननोन एज जीरो, एक को जीरो एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट जरूरी नहीं हमेशा इससे आंसर आ जाए, बिकॉज उसके बाद हो सकता है, पॉसिबल है कि वैल्यूज जो हमारी हैं बाकी दो अननोन्स की, या जो भी हम सॉल्व करें वहां पे वैल्यूज जो इंटीजर में नहीं हो, अगर इंटीजर में आएंगी तब तो क्वेश्चन ईजी है हमारे लिए, बट अदरवाइज हमेशा ये तरीका काम करे जरूरी नहीं है, तो ये मेथड तो हमेशा काम करेगा, ठीक है। बट फिर भी इसको भी देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे हमने पुट कर दिया सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में, ठीक है। सो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 6 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बिकॉज सी क्यूब 0 हो जाएगा, 3abc 0 हो जाएगा, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा हमारा इक्वल टू 342। ओके, अब यहां पे इफ यू कैन ऑब्जर्व, क्योंकि इंटीजर में वैल्यूज आ रहा है, तो 7 क्यूब इज 343 और 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू -1, बिकॉज 1 क्यूब से तो ऐड करोगे -1 क्यूब, यानी कि ए विल बी इक्वल टू 7 एंड बी विल इक्वल टू -1, और ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को। हमेशा जरूरी नहीं है कि यहां से सॉल्यूशन मिले, आई रिपीट, बट यहां पे जस्ट इन केस सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। सो ये भी काम कर जाएगा। सो अल्टीमेटली में चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, क्योंकि सी 0 है तो बी सी प्लस सी है तो 0 आ जाएगा डायरेक्टली, तो ए बी की वैल्यू ही बराबर होगी, सो ए इंटू बी हमारा आ जाएगा -7 एंड दिस विल बी द आंसर, ठीक है। बट ये तरीका हमेशा समझ में आना चाहिए, बिकॉज दिस माइट, द सेकंड मेथड माइट नॉट ऑलवेज वर्क। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, टू आइडेंटिकल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड आउट, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हाइट है 30 सेंटीमीटर और डायमीटर है बेस का 10 सेंटीमीटर। हाइट है 30 और डायमीटर ऑफ द बेस इज 10, यानी कि रेडियस हमारा है 5, रेडियस इज इक्वल टू 5 एंड क्वेश्चन इज सेइंग टू आइडेंटिकल कोनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर रेडियस के ही होल्स हम कट कर रहे हैं इसमें, और हाइट उनका कितना है 12 सेंटीमीटर है। सो जो होल्स हमने कट किए होंगे ये उनका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर ही है, सो वन होल विल बी ऑन दिस साइड, ठीक है, दिस डेप्थ इज, this is 12 and the second hole will be on this side, this is 5, this is 12 and since this is a right angle triangle है, one side 5 है, one side 12 है, तो hypotenuse कितना होगा हमारा 13 होगा, यानी कि this lateral height this will be 13, isn't it so? और क्वेश्चन हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो क्या सरफेस एरिया में बचेगा, एक तो बचेगा हमारा लैटरल सरफेस एरिया, डायग्राम समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो बचेगा हमारा लैटरल सरफेस एरिया, और जो बेस एरियाज है वो तो 0 हो गए, क्योंकि उसको तो हमने पूरा का पूरा ड्रिल कर दिया, बट ये जो लैटरल सरफेस एरिया हमारा बचा सिलेंडर का, ठीक है। सो हमारा एरिया क्या बचेगा, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यही तो बचेगा, ठीक है, क्योंकि बेस एरियाज तो हमने पूरे के पूरे ड्रिल कर दिया, खत्म हो गया वो तो। सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा 2πRh प्लस फॉर कोन्स द लैटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया πRL, ठीक है। R इज इक्वल टू 5, H इज इक्वल टू 30 एंड L इज इक्वल टू 13, पुट कर दो वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। तो 2π तो कॉमन आ रहा है, इवन R भी कॉमन ही आ रहा है, और R कितना है 5, 2π इंटू 5 और कैपिटल H इज 30, L is 13, so this is 430 pi. आंसर विल बी 430 pi, बट डायग्राम को प्रॉपर्टी समझना है, उसको इमेजिन करना है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा का पूरा हमारा एरिया ड्रिल हो गया था, बट जरूरी नहीं है, अगर हमने कोन का रेडियस छोटा रखा होता, फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर रखा होता, तब फिर हमें और देखना होता, बेस एरिया में भी कुछ पोर्शन बच जाता, उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ता, उसको भी सॉल्व करना पड़ता, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते। बहरहाल इस क्वेश्चन में आंसर है 430 pi, ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ग्राफ्स 8x + 3y = 24, 2x + 8 = y एंड x एक्सिस क्या होगा।
Area of triangle formed by the graph of 8x plus 3y is equal to 24, 2x plus 8 is equal to y and x axis. ठीक है, so x axis implies y is equal to 0. So one equation is y is equal to 0. Other equation है 8x plus 3y is equal to 24 and 2x plus 8 is equal to y. तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी थर्ड y इक्वल टू 0 से तो सॉल्व करना आसान है. ठीक है, उसको डायरेक्टली लिख के भी सॉल्व कर लेंगे. सो 8x plus 3y is equal to 24 आ रहा है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा. सो 3y है प्लस 3y है कोफिशिएंट, तो दूसरे में भी प्लस 3y करने के लिए क्या करें, या माइनस 3y करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड इक्वेशन को. 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y या फिर 6x माइनस 3y विल बी इक्वल टू माइनस 24. सेकंड इक्वेशन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ऐड कर दो दीज टू इक्वेशंस को, कि ऐड करते ही हमारा 3y वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा और 24 माइनस 24 ये भी 0 हो जाएगा. सो ऐड करते ही 14x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे सेटिस्फाई हो रहा है दोनों इक्वेशन को. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इफ x इज इक्वल टू 0 सो y क्या आएगा, 8x 0 हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 8. x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 8 पे दीज टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 8. ठीक है, अब 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24. अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर दें, 8x विल बी 24, x विल बी इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो 3, 0 इज वन सॉल्यूशन. सो एक लाइन तुमने ड्रॉ कर ली, दिस इज द लाइन 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 24 और द सेकंड लाइन पुट y इज इक्वल टू 0. सो 2x प्लस 8 इज 0, सो x आ जाएगा इक्वल टू -4, यानी कि -4, 0. So this is our second line and this is line equation 2x plus 8 is equal to y. और थर्ड लाइन हमारा क्या है, थर्ड तो x एक्सिस ही है. So this is our triangle. सिंपल ट्राइंगल बन गया है, इजी है. इसके लिए हमें एरिया फाइंड आउट करना, बिकॉज बेस भी दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है बेस हमें, और हाइट भी दिख रही है. हाइट कितना है 0,8, हाइट इज इक्वल टू 8 यूनिट्स और बेस हमारा कितना है -4 से 3 के बीच का डिस्टेंस है 7 यूनिट्स. Area will be 1/2 into base into height, 1/2 into 8 into 7. So this will be 28. 28 will be the answer. Option D. Is that part clear? ठीक है, 28 आंसर हो जाएगा. Okay. Next question. X and Y enter into a partnership with capital in the ratio 3:5. 3:5 के रेशियो में कैपिटल है उनका. इनिशियली एक पार्टनरशिप में एंटर किया और after 5 months X adds 50% of his capital while Y withdraws 60% of his capital. What is the share of X in the annual profit of rupees 6.84 lakhs? Okay, तो X और Y जब पार्टनरशिप में एंटर किए तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इज 3:5. आफ्टर 5 months, 5 months तक तो ये कहानी चलती रही. आफ्टर 5 months X adds 50% of his capital. ठीक है, तो 5 months तक तो दिस वॉज देयर कैपिटल, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और दिस इज टाइम. ठीक है, तो 5 months तक तो यही स्टोरी रही. बट इसके बाद में चीजें चेंज होगी. क्या चेंज हुआ, आफ्टर 5 months एक्स एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल. तो जितना कैपिटल ऑलरेडी था 50% उसका और ऐड किया, यानी 1.5. अगर 3 था तो 1.5, बट इंटीजर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से दोनों को, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे. तो इनिशियली 6 था तो बाद में 3 और ऐड कर दिया. 3 एक्स्ट्रा ऐड किया है, ध्यान रखना है, ऐड किया है. तो 6 ऑलरेडी था, 6 + 3 अब 9 हो जाएगा. ठीक है, 9 हो जाएगा. पहले 6 था, 3 और ऐड किया, 9 हो जाएगा. और वाई विड्रॉ 60%, यानी 3/5 ऑफ द कैपिटल. तो इनिशियली 10 है, 5 × 10 है, 10 में से 6 रिमूव कर देगा, 4 बचेगा. 10 - 6. ओके, गलती से 6 नहीं लिख देना, यहाँ पे गलती बहुत लोगों से होगा कि 6 लिख दोगे अपने एंड पे सॉल्व करोगे तो. 60% विड्रॉ किया है तो 4 बचेगा. ठीक है, और अब टाइम पीरियड कितना बचा है, 5 मंथ्स ऑलरेडी निकल चुके थे, 7 मंथ्स बचे हैं. तो दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर द 7 मंथ्स. ओके, तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के. इनिशियली क्या है, दिस इज 6 × 5 30 प्लस 9 × 7 63, और यहां पे आ रहा है 10 × 5 50 प्लस 4 × 7 28. सो दिस विल बी फाइनल रेशियो 93:78 या 31:26. दिस इज द रेशियो. 31:26 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि हाफ से ज्यादा किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा. क्वेश्चन में एक्स का शेयर पूछा है, दैट विल बी ग्रेटर देन हाफ. तो 3.42 से तो ज्यादा ही होगा. ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, बाकी तो कोई भी आंसर हो सकता है. तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. 31 + 26 दिस इज 57. 19 का मल्टीपल आ रहा है 57, विच इज इक्वल टू 6.84 lakhs. ओके, 19 3 57, 19 3 57 बचा 114, और तो 36 आ गया.
3 से गया, 12 गया, ठीक है, और क्योंकि डेसिमल है तो 0.12 लैक्स हो जाएगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.12 लैक्स, तो टोटल 31 यूनिट्स मिलना है, 31 इंटू 0.12, दिस विल बी 372 यानी 3.72 लैक्स. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. 3.72 lakhs will be the share of x, y का शेयर हो जाएगा 3.12 lakhs. ओके, क्लियर है? दिस इज शेयर ऑफ x and this will be share of y. Okay. Next question. There is a square field of side 500 meter long each. It has a compound wall along its perimeter. At one of its corners, a triangular area of the field is to be cordoned off by erecting a straight line fence. The compound wall and the fence will form its borders. If the length of the fence is 100 meters, what is the maximum area that can be cordoned off? तो स्क्वायर फील्ड का साइड लेंथ है हमारा 500 मीटर्स. Compound wall along its perimeter. At one of its corners, a triangular area of the field is to be cordoned off. Okay. The compound wall and the fence will form its border if the length of the fence is 100 meters. This is 100 meters. Let us say this is x and this is y. What is the maximum area that can be cordoned off? So we need to find out the maximum area of this value. ठीक है, maximize this area. Okay. गिवन क्या है हमें? सिंस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, ये तो गिवन है. और हमें मैक्सिमाइज किसको करना है? एरिया को. सो एरिया का वैल्यू क्या आएगा? एरिया वैल्यू 1/2 एक्स वाई. सो दिस हैज टू बी मैक्सिमाइज, यानी कि एक्स इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, एएमजीएम लगा देंगे. कब मैक्सिमम होगा? वैसे तो मैक्सिमम तब होगा क्योंकि सम हमारा फिक्स्ड है. अगर सम फिक्स्ड है तो मैक्सिमम तब होगा जबकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों इक्वल हो. ठीक है, दोनों जब इक्वल होंगे तब मैक्सिमम होगा. मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इक्वल कर दो. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा इक्वल टू 100 स्क्वायर बाई 2. सो एक्स विल बी 100 अपॉन रूट 2 यानी 50 रूट 2 आ जाएगा. सो एक्स विल बी इक्वल टू 50 रूट 2. सो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, और एक्स और वाई अगर इक्वल है तो दिस इज 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एस एच, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर था 100 स्क्वायर बाई 2, तो दिस विल बी 100 स्क्वायर बाई 4 विच विल बी 10,000 बाई 4, 2500 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. क्या है? क्लियर है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज 2 मोर देन सी. एवरेज ऑफ नंबर्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 दिस इज इक्वल टू सी प्लस 2. मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ए प्लस बी प्लस सी, दिस विल बी 3c प्लस 6, एंड हेंस a प्लस बी आ जाएगा हमारा इक्वल टू 2b 2c प्लस 6. द एवरेज ऑफ a एंड b इज 48. तो a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी बाई 2 48 है, एंड हेंस a प्लस बी विल बी इक्वल टू 96, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 2c प्लस 6. तो c यहां से आ जाएगा इक्वल टू 45, एंड d इज 10 लेस देन c, तो d इज इक्वल टू c माइनस 10 विच इज इक्वल टू 35. तो c प्लस डी का एवरेज क्या आ जाएगा? c प्लस डी बाई 2 विल बी 45 प्लस 35 बाई 2 विच इज इक्वल टू 40 ओनली. ऑप्शन डी. वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. बस जो स्टेप लिखे हैं डायरेक्टली करते जाओ, सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 40. क्या है? क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्रीज. Points P and Q are on the sides AC and BC respectively, such that AP is to PC is equal to BQ is to QC is equal to 1:2. Then AQ square plus BB square upon AB square क्या होगा? Pause the video and take your time in solving this question. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल C is 90. Points P and Q are on the sides AC and BC such that AP is to PC क्या है? 1:2. AP is to PC 1:2 है, AP छोटा होगा, AP is to PC is 1:2.
सिमिलरली बी क्यू क्यू सी क्या है 1:2, यानी कि बी क्यू छोटा होगा 1:2। देन ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए क्यू स्क्वायर बी पी प्लस बी पी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, यानी कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स पे भी फोकस करना है। ओके ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि ए सी हमारा इक्वल टू मान लेते हैं, लेट अस से ए सी इज इक्वल टू 3x, 3x मान लिया। सो इफ ए सी इज इक्वल टू 3x तो ए पी आ जाएगा x और पी सी आ जाएगा 2x। सिमिलरली लेट अस से बी सी इज इक्वल टू 3y, बिकॉज हमें बार बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ए बी इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ए क्यू इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ए क्यू सी, और बी पी इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल बी पी सी। तो 3 बार हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बी सी इज 3y, तो बी क्यू विल बी y एंड सी क्यू विल बी 2y। ओके, सो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So this will be 3x whole square plus 3y whole square। जितना शॉर्ट में लिख पाओ उतना बेटर है। ठीक है, सो दिस विल बी 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तुम्हें समझाने के लिए मुझे इतना लिखना है, तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है डायरेक्टली ए बी स्क्वायर इज 9 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करो ए क्यू स्क्वायर का। ए क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आ जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर आ जाएगा 4y स्क्वायर। सिमिलरली बीपी स्क्वायर क्या होगा? दैट विल बी 9y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सो एड दीज टू, सो ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, और ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर। तो 13 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 13 अपॉन 9, दिस विल बी द आंसर। 13 by 9, option C is the answer. Isn't it so? ठीक है, is this clear? और क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हमारा x और y पे डिपेंड नहीं करने वाला था, सो हम डायरेक्टली भी AC को 3 मान लेते, BC को भी 3 मान लेते, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। AC को 3 एज्यूम कर लेते, BC को 3 एज्यूम कर लेते, अकॉर्डिंगली AB की वैल्यू आ जाती है, अकॉर्डिंगली BP की आ जाती है, अकॉर्डिंगली AQ की आती है। X और Y को लिखने की जरूरत ही नहीं थी सच, बिकॉज क्वेश्चन का आंसर हमारा X और Y पे डिपेंड करता ही नहीं। X और Y की वैल्यू कुछ भी होगी, ये रेशियो हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हैं। ऑप्शंस में कहीं पे नन ऑफ दीज नहीं लिखा है, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं लिखा है, डेटा इनसफिशिएंट नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि आंसर हर एक केस में आइडेंटिकल आएगा, सेम आएगा। सो X और Y को लिखने की बजाय तुम डायरेक्टली 3 सेंटीमीटर वैल्यूज एज्यूम कर लेते, AC और BC का क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बार बार X और Y हमें फिर नहीं लिखना पड़ता। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 5 digit number 535AB is divisible by 3, 7 and 11, then what is the value of a square minus b square plus ab? 5 digit number है हमारा 535AB and this number is divisible by 3, divisible by 7 and divisible by 11. तो what is the value of a square minus b square plus ab? a square minus b square plus ab की वैल्यू क्या होगी? अब देखो, एक प्रोसेस तो ये है इस क्वेश्चन में कि डिविजिबिलिटी बाय 3 टेस्ट करें हम, तो वहां से a प्लस बी करें, पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। डिविजिबिलिटी बाय 11 टेस्ट करें, वहां से वैल्यूज मिल जाएगी, कुछ a माइनस बी के लिए मिलेगा क्योंकि वहां पे डिफरेंस होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली फिर सॉल्व कर सकते हैं, बट मल्टीपल केसेस बनेंगे, क्वेश्चन टाइम टेकिंग होगा, और एग्जाम में इतना टाइम तो बिल्कुल होता नहीं है। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने का कि डिविजिबिलिटी हमें करना है 3, 7, 11 तीनों से डिविजिबल है ये नंबर, 3 से डिविजिबल है 7 से और 11 से। एलसीएम क्या है 3, 7, 11 का? एलसीएम इज 7 into 3, 77 into 77 into 3, 231. एलसीएम इज 231। तो नंबर 535AB इज आल्सो डिविजिबल बाय 231, आल्सो डिविजिबल बाय 231, इजंट इट सो? तो हम ये देख लेते हैं 231 से डिविजिबल कौन सा नंबर आएगा जिसमें कि इनिशियल डिजिट था 535। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, सो इनिशियली हमने मान लिया नंबर हमारा है 53500, इसको डिवाइड करते हैं 231 से, रिमाइंडर देख लेते हैं। डिवाइड बाय 231, तो 231 2s are 462, बच जाएगा 73, 7300 हो गया। 231 3s are 693, 693 बच गया हमारा 370।
अब क्योंकि हमें 231 से डिवाइड करना है और अभी हमारा डिवाइड होगा नहीं 370, रिमाइंडर बच जाएगा। 231 से डिवाइड करने के लिए नंबर में कितना ऐड कर दोगे, 231 से डिवाइड हो जाएगा, 231 इंटू 2 इज 462, तो ऐड कर दो यहाँ पे 92, तब डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अपने नंबर में हमें ऐड करना पड़ेगा 92। तो आंसर आ जाएगा हमारा 53592। दिस शुड बी आवर नंबर। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और आंसर यहां से वैल्यू मिल जाएगा a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 2। सो a स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, दिस विल बी 77 प्लस 18 95। आंसर विल बी 95 ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लंबे मेथड से हम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, हालांकि देखना है, देखने को देख सकते हैं लंबे मेथड से, बट एग्जाम में कतई हम लंबे मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, बिकॉज अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। 535 ए बी है, डिविजिबल बाई 3 होना है, तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ए प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाई 3। और ये कितना आ रहा है? 13 प्लस ए प्लस बी डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। 13 प्लस ए प्लस बी क्या हो गया? 12 तो ऑलरेडी डिविजिबल है, तो 1 प्लस ए प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाई 3। हेंस ए प्लस बी कैन बी इक्वल टू 2 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। 2 ए प्लस बी कैन बी 5 और 8 और 11 और 14 और 17, क्योंकि ए प्लस बी हमारे डिजिट्स हैं, तो 17 से बड़ा सम नहीं हो सकता, 2 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि -1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, सो दीज आर द पॉसिबल केसेस फॉर ए प्लस बी। अब सिमिलरली दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11 होगा, 11 से डिविजिबल होना है, तो सम ऑफ 5 प्लस बी और 3 प्लस ए का जो डिफरेंस है दैट शुड बी डिविजिबल बाई 11। So this is 10 plus b minus 3, यानी कि 7 plus b minus a should be divisible by 11। तो या तो ये हमारा 0 हो जाएगा, या फिर ये हो सकता है 11। If this is equal to 0, तो यहाँ से हमें रिजल्ट आ जाएगा that b minus a is equal to -7, या फिर a minus b is equal to 7। ये केस बन गया हमारा। If this is equal to 11, तो b minus a is equal to 4। या तो a minus b 7 आ जाएगा, या b minus a equal to 4 आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो a माइनस बी इक्वल टू 7। यहां से क्या क्या सॉल्यूशन मिलने वाले हैं? a कैन बी इक्वल टू 7, देन b इज 0, a 8 b 1 a 9 b 2। तो a प्लस b का सम देख लो क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट केस में आ रहा है 7 प्लस 0 7, दूसरे में आ रहा है 9 और फिर आ रहा है 11। 7 सम होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सम चाहिए 2 5 8 11 14 और 17 में से 7 नहीं, 9 नहीं, ओनली 11 इज द पॉसिबल केस। और यहां से नंबर बनेगा हमारा 53592। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बट एडिशनली b माइनस इक्वल टू 4 वाली केसेस भी हमें कंसीडर करने हैं। तो इफ b माइनस इज इक्वल टू 4, तो b कैन बी 4 a 0 5 1 6 2 7 3 8 4 एंड 9 5। अगेन यहां से देखोगे सम हमारा a प्लस b का क्या आ जाएगा। फर्स्ट केस में आएगा 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14। और हमें चाहिए क्या? 2 5 8 11 14 और 17। तो 4 6 8 8 वाला काम करेगा और 14 वाला काम करेगा, फिर इनको हमें चेक करना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है, तो 8 से नंबर बनेगा हमारा 535 और a देन b, तो 26 535 26, और यहां नंबर बनेगा 535 59। अब ये चेक करेंगे इनमें से कौन से ऐसे नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 7 एज वेल। तो फर्स्ट वाला नंबर ये तो 7 से डिविजिबल निकलेगा, ये तो अल्टीमेटली आंसर ही आ रहा है। ठीक है, वो पता ही हमें, तो 7 से डिविजिबल निकलेगा। यहां पे चेक कर लो, तो पहले तो 535 में कितना रिमाइंडर बचने वाला है? 7 49, 3 रिमाइंडर यहाँ पे बचा 32 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा फाइनली, और यहाँ भी रिमाइंडर बचेगा। सो दीज 2 आर नॉट डिविजिबल बाय 7। सो आंसर हमारा फाइनली ये वैल्यू आएगा, और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व करेगा। बट देख सकते हो कितना लंबा प्रोसेस है, गलती होने का भी काफी स्कोप है, यहाँ पे केसेस स्किप होने का भी स्कोप है, कि पता चला तुम्हारा एक्चुअल जो केस है जो सॉल्व होने वाला है वो केस ही स्किप मार दो, गलती कर दो कहीं ना कहीं पे। ठीक है, सो दिस इज लॉन्गर प्रोसेस, और जिसकी हमें कतई कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में डेफिनेटली विल बी सॉल्विंग विद दिस क्वेश्चन विद दिस मेथड। ओके, ठीक है, सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो समझ में होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी कतई कोई डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू हैव लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।